So, a very good afternoon to all. I am Tanushree Chandra, and I am your center head of Incubation Center, SAC Panchkula, and I am a certified soft skill and personality development trainer, and an experience of career counseling and in and around Chandigarh, like colleges like I have been counseling students, making them ready for different interviews, for pitching their startups in different colleges like Kara, and now I am here at Panchkula SAC Center. So today we will be talking about elevators pitch. So anybody from the audience would like to share something on elevators pitch, or they know something about elevators pitch? Anybody? Well, I would like that this should be an interactive session. You can, even chat. You can write a chat, or you can answer through a chat, or you can unmute yourself, or you can raise your hand and I can unmute yourself, and then we can discuss. So, you know, whenever we as a student, whenever we face an interview, or whenever we have to network with people, whenever we have to meet somebody for the first time, the first thing which takes us back is what to say, how to start, like what's the first words which are going to come up through our mouth. So, introducing ourselves sets the stage for any professional conversation, whether it's a networking event or a conversation starter, चाहे वो एक colleague के साथ है, चाहे वो पहला दिन job में है, या चाहे वो interview, as a student, आप में से मेरे audience में काफी सारे students बैठे होंगे जो ये सोचते हैं कि, the first cliched question which comes when we are facing an interview is, tell me something about yourself, or describe yourself. And at that time, butterflies comes into our stomach, we get nervous, how to answer this question, how to reply to this question. So this is all about today's session. We are going to set the stage, we are going to make our that speech ready, कि चाहे मुझे रात को 1 बजे उठा के भी कोई नींद से उठाए और मुझे बोले कि भाई अपने बारे में बोलो, तो आई कैन स्पीक एनीथिंग, बिकॉज आई हैव prepared it, I have practiced it, and I know it very well. It's on my tips, right? So you don't have to get afraid of, you don't have to dread about it कि यार मेरे को कल इंटरव्यू है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं, या मुझे किसी इन्वेस्टर से मिलना है, या मेरे को कोई नेटवर्किंग उसमें जाना है. फॉर इंस्टेंस, जैसे अभी वी आर मीटिंग एवरी डे ऑनलाइन, when we are meeting every day online, and mentoring sessions हो रहे हैं, and when you have a question, so the mentor asks you to first introduce yourself. तो हम उतना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, हमारे पास बहुत कम टाइम होता है अपने बारे में बताने के लिए. तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू से, or to speak, or to how to introduce in those few seconds, is the magic, is the is the basic idea. So today's whole session is about how to set the stage for starting a conversation with a colleague, or you are giving an interview as a job seeker, or you are meeting your investor, you are you are going to give an investor's pitch. So it's all about today's session. So let's start our session with elevator's pitch. Okay, we have an answer from our audience. That's he says that, ma'am, an elevator's pitch is used in aircraft, I think. Okay, sorry Ankush, it's not that कि aircraft में use होता है. Elevator जो word है, it literally tells you about it. Elevator means lift, the lift.
So it's a pitch when you are writing a lift. उतने से कम टाइम के अंदर जब आप किसी से बात करते हो या किसी के सामने अपना अपने इंट्रोडक्शन देते हो या अपने बारे में बताते हो, that's what elevators pitch is about. Okay, so today's agenda will be कि what is an elevators pitch, होता क्या है, how it fits with your business or career strategy, how to communicate your value in very short time between 20 to 30 seconds. जैसे आपने कभी अगर लिफ्ट ली होगी, एक फ्लोर से दूसरे तीसरे फ्लोर तक जाने में जितना टाइम आपको लगता है, those 20-30 seconds, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर आप कैसे दूसरे इंसान को अपने बारे में बताओ. That's the thing, that's the elevator's pitch. So important components of a strong introduction, कि एक strong introduction क्या होता है, how it is important and how it can actually mold your career, actually lift your career. So, and how to tell that unique story to any investor, to the person you are networking with. So it's all about that today. So before starting, I would request all my participants कि जब हम इस elevator pitch के बारे में बात करेंगे, तो you should also write your own, craft your own elevator speech, elevator की अपने questions jot down करो, अपने बारे में लिखो, write something about yourself in one-liners about yourself, so that at the end of the session you have your own pitch ready. Okay, so let's start. Okay, I'll just okay. So picture these situations, finding a new job as a student, when you are finding as a job seeker, you are into a campus placement, you are sitting for a job interview, or you are going for a networking event, and you have sweating hands, what to say, what to talk to my investor, or starting a sales relationship कि आपके पास product ready है, पर मैं जा रहा हूँ अपने सेल्स के लिए या किसी को अप्रोच करने जा रहा हूँ अपना आइडिया पिच करने के लिए, तो व्हाट एवरीथिंग इज गोइंग, मतलब एवरीथिंग इज पजल्ड इनसाइड माय माइंड कि मैं कैसे करूँ, हाउ आई शुड मूव ऑन. So all these things are, just imagine these situations कि आप क्या बोलोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, how will all these things happen. You need an elevator pitch, a brief, persuasive, interesting, and most of all, memorable elevator pitch you need. And this is why today's session is so important for you as a student, as a young starter, as a young entrepreneur, right? So let's start. So why do I need an elevator pitch? So the most dreaded question जो हम लोग face करते हैं as a student, जब हमारे interviews में we face, या when we meet somebody for the first time and the person asks us, tell me about yourself, अपने बारे में बताइए. Why so something goes inside our head, inside our stomach, कि क्या बताए, क्या छोड़े, क्या बताए, and we just have 20 to 30 seconds to impress that person, to make that person remember us. So what we answer, and the next question, the most important next question is, why should I hire you? Yeah, why should I buy your product? Why should I invest in your product and your idea? So जो भी हम बताते हैं, जो भी हम देते हैं, जो भी हम उनको बताते हैं, always does the listener remember कि who are you, what you do, why are you unique, what are your goals? Because हमारे पास क्या है, सिर्फ 20 to 30 seconds हैं उनको impress करने के लिए और उनको बताने के लिए कि हम ये चीजें कर सकते हैं आपके लिए, and we can solve that problem for you, right?
सो टुडे लाइक जो हम बेसिकली हम क्या बताते हैं जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये हमारा जो सभी का ये बेसिक है। हम अपना नाम बताते हैं, वी जस्ट गिव देयर नेम, लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक माय नेम इज तनुश्री चंद्रा and I am the center head of SAC Panchkula center, and I'm looking for new startups, or I am looking for helping and guiding new startups. So, will this take me far? Will I be connected to people like the youngsters जिनको मैं ढूंढ रही हूँ, जो मेरा audience है, क्या वो उससे motivate होंगे? नहीं. Why? Because I miss somewhere the hook or the request of an action. मतलब मेरे audience को पता ही नहीं कि उनका what is मतलब so what? आपका नाम अगर तनुश्री है तो हम क्या करें? अगर आप SAC के center head हो तो इससे हम क्या करें? you know you have to have a hook, you have to have a pinch their problem. आपको उनका problem पकड़ना पड़ेगा, and that is what makes an elevator pitch a best elevator pitch. Only when you given hook to when you are introducing. Even आपके जो introductions होते हैं एक इंटरव्यूअर के सामने, जब आप इंटरव्यू के लिए पहला क्वेश्चन फेस करते हो, tell me something about yourself. And he has your resume, the person has your resume, उसके पास आपका resume है, सारी प्रोफेशनल डिटेल्स है, सब कुछ है, फिर भी वो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि चलिए अपने बारे में बताइए. एंड हमें लगता है कि क्या बताएं, अपना नाम बता देते हैं, हमारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो बता देते हैं, हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है वो बता देते हैं, बट वी फॉरगेट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि इससे उसका क्या फायदा होगा, इससे हमारे रिक्रूटर को क्या फायदा होगा. So elevators pitch, today's session will tell you how to give that impressive 20 to 30 seconds introduction, जिससे वो सामने वाला इंसान आपसे पूछे what next, उसके पास क्वेश्चन हो आपसे पूछने के लिए, वो आपसे कनेक्ट कर, right? So सबसे पहले, first things first, let us understand what is an elevator pitch. Elevator speech, also known as an elevator speech, a quick synopsis होता है आपके background का, आपके experiences का. It's an overview of an idea, a product, service या project, person और other solutions. मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि जब आप investors से मिल रहे हो उसी टाइम आपने देना है, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे काम आता है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप आइडिया किसी को सुनाने जा रहे हो उस टाइम काम आता है. बेसिकली इसकी शुरुआत ऐसी हुई थी कि when there were many startup, जब ये स्टार्टअप कल्चर स्टार्ट हुआ था यूएस में, तो जब इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स लाइन लगा देते थे तो अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती थी, तो क्या होता था, जो ये यंग एंटरप्रेन्योर्स होते थे, ये उनकी बिल्डिंग्स के नीचे खड़े होते थे, और जब वो देखते थे कि कोई इन्वेस्टर एंटर कर रहा है बिल्डिंग में, तो दे यूज्ड टू एंटर दैट एलिवेटर, एंड उस एलिवेटर के राइड के दौरान वो उनसे बात करने की कोशिश करते थे. ओके, अब आ रही है, क्लियर आ रही है? इज इट क्लियर नाउ? somebody saying the voice is not clear. अब आ रही है अनिल? प्लीज रिस्पॉन्ड. ओके, ग्रेट. सो उस टाइम के दौरान जब वो राइड लेते थे, ड्यूरिंग दैट राइड जो उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होता था, जो उनके बीच में sorry to cut, ये मेरे को लगता है ड्यू टू there is some problem due to the connection, internet connection, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है. ओके, सो ओके, जब हम राइड लेते दौरान जब हम बात करते थे, द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द स्टार्टअप, उसको हमने एक टर्म दे दिया, द टर्म कॉल्ड एलिवेटर पिच. तो वहां से ये स्टार्ट हुआ, एंड वो अब चलता गया, एंड इट इज यूज्ड फॉर बाय द जॉब सीकर्स, बाय द न्यू स्टार्टअप्स, एवरीबडी, क्योंकि हमारे पास बेसिकली अगर हम देखें, इवन हम कभी मार्केटिंग के लिए भी जाते हैं तो हमारे पास कुछ ही सेकंड होते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए. इवन जब आप रास्ते से जाते हो, आप कोई साइनेज देखते हो,
तो आपके पास ना सिर्फ वो कुछ सेकंड्स होते हैं, 5-10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स होते हैं उस साइनेज को देखने से, और उससे आप क्या निकाल सकते हो, या उससे आप इम्प्रेस होते हो या परसुएसिव होते हो कि हाँ ये मैं ये प्रोडक्ट खरीदता हूँ। सो दैट इज हाउ आप खुद को सेल कर रहे हो। आप अपने आपने जो ये इतने साल लगाए हैं अपने एजुकेशन पे, अपने अपने ऊपर अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, सो दैट इज यू जस्ट हैव दो सेकंड्स। तो आप उसको कैसे डिजाइन करोगे उस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज व्हाट एलिवेटर्स पिच इज। इट इज अ वेरी पावरफुल टूल इन नाउ डेज, क्योंकि आज के डेट में तो बिल्कुल किसी के पास टाइम नहीं है। यू नो, इवन व्हेन यू आर सिटिंग फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स ड्राइव्स, तो इतनी लंबी लाइन होती है, इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, द रिक्रूटर डजंट हैव टाइम टू sit and chat with everybody. So you just have those seconds. तो उसके लिए this is a very powerful tool, and I think every student, every startup should learn elevators pitch. It is just for 20 to 30 seconds. It should be a memorable pitch ताकि इंसान आपको याद रखे। क्योंकि आप ना एक चीज बहुत ध्यान से सोचिए कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग आपसे रोज मिलते हैं, हम नए मेंटर्स लाते हैं आपके पास, हाउ मेनी पीपल रिमेम्बर देयर नेम? नोबडी रिमेम्बर्स देयर नेम। आप जो चीज याद रखते हो वो याद रखते हो कि अगर उस बंदे की कोई एडवाइस जो आपकी लाइफ में काम आती है, वो चीज आप उसकी याद रखते हो। सो दैट इज द थिंग। एलिवेटर्स पिच भी उसी तरह से आपने डिजाइन करनी है कि उन 20 टू 40 सेकेंड्स के बीच में जो मैं कुछ भी जो भी अपनी इंफॉर्मेशन देता हूँ या देती हूँ, दैट शुड बी मेमोरेबल। वो इंसान हमें याद रखे, वो यूनिक होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए। बिकॉज पावरफुल नहीं होगी तो वो आपको रिक्रूट नहीं करेगा, वो आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा, पैसे नहीं देगा एज एन इन्वेस्टर। सो इट शुड बी पावरफुल एंड फॉरवर्ड लुकिंग कि आगे का फ्यूचर का क्या प्लान है, आपके गोल्स क्या है। सो दैट इज व्हाट एन एलिवेटर पिच इज। इट्स अ फुल ब्रांडिंग, सेल्फ ब्रांडिंग है, आपको डिफरेंशिएट करता है। दैट इज ऑल इज एलिवेटर्स पिच। So a way to share your expertise and credentials quickly and effectively with people who don't know you. ठीक है, इस बहुत शॉर्ट में मैंने बताया कि it's a way to share your expertise and credentials quickly and effectively with people who don't know you. Next. So when to use and how to use your elevator pitch. जब आप जॉब सर्च कर रहे हो, जब आप जॉब इंटरव्यूज दे रहे हो, चाहे वो कैंपस प्लेसमेंट्स के दौरान है, चाहे वो जॉब फेयर है, चाहे अभी का सिचुएशन ले लेते हैं, आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज कंप्लीट करने वाले हो मई जून में, एंड ड्यू टू लॉकडाउन आप घर पे बैठे हो, आप कनेक्ट नहीं कर पाते, तो आप इंटरनेट के जरिए, जैसे बहुत सारे इंटरनेट जॉब पोर्टल्स हैं, नेटवर्किंग पोर्टल्स हैं, लिंक्डइन है, तो आप अपनी समरी लिख रहे होगे, कवर लेटर्स लिख रहे होगे। तो एलिवेटर स्पीच यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक गो गेटर्स के लिए आपको हेल्प करेगा टू गिव यू दैट स्मॉल डिस्क्रिप्शन, राइट। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग इवेंट्स में जब जाते हो, स्पेशली जैसे अभी जब आप मेंटर्स, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जब आप वर्चुअल एवरी डे आपकी जो वर्चुअल सेशंस हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, कोई नया मेंटर आता है, कोई नया स्पीकर आता है, तो आप जब उससे कनेक्ट होते हो, जब आप उससे बात करते हो, तो दीज काइंड ऑफ इवेंट्स, दीज काइंड ऑफ इवेंट्स में आपको हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए आपको एलिवेटर स्पीच बहुत हेल्प कर सकता है, एंड यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू गिव दैम। सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल जनरल सा एक आइडिया अगर मैं बताऊं आपको, सिंपल सा आइडिया, ये 9 C's अगर आप यूज कर लोगे, अगर आप 9 C's को अपने एलिवेटर स्पीच में कंबाइन कर लोगे, तो यू विल गो प्लेसेस। व्हाट आर दीज 9 C's? फर्स्ट इज कंसाइज, बी कंसाइज, शॉर्ट होना चाहिए, वेरी ब्रीफ, ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए आपके एलिवेटर स्पीच में। जब आप उसको लिख रहे हो तो यू शुड यूज वेरी ब्रीफ, वेरी शॉर्ट में, वेरी लिमिटेड वर्ड्स में। इट शुड बी वेरी क्लियर, फॉरगेट दोस जार्गन्स। अगर जैसे आप डेवलपर हो या पीएचपी के, यू आर पीएचपी स्पेशलिस्ट, और यू आर अ डेवलपर, और यू आर इन अ मेडिकल लाइन, और यू आर इन अ तो आपने जार्गन्स भूल जाना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा क्या होता है कि रिक्रूटर्स
and not from the same field, and they don't understand those complex words. तो आपको बहुत simple language में, clear language में बताना पड़ेगा. It should be compelling, you know. Focus on the problematic area. अब जैसे problematic area means जो startups हैं, जब वो अपना pitch तैयार करेंगे तो उनको ये ध्यान में रखना है कि जो वो product बना रहे हैं, does it solve any problem or not. एंड अगर जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं एलिवेटर स्पीच, उनको ये सोचना है कि मेरा जो सामने जो कंपनी है उसका प्रॉब्लम क्या है, व्हाई दे आर रिक्रूटिंग, यू नो, व्हाई दे आर हायरिंग अस. सो अगर मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि व्हाई दे आर हायरिंग, यू नो, व्हाट इज देयर, यू नो, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर इन अस, तो अगर ये मैंने उनको आंसर कर दिया और इस वे में आंसर कर दिया, तो लो लुकिंग बैक, यू नो, आई विल नॉट बी रिजेक्टेड. मेरा एक्सेप्टेंस है ही है. सो नेक्स्ट इज क्रेडिबल. जो भी आप बोलो, यू शुड ऑलवेज बी कन्विंसिंग, यू नो, कि आप एक्सपर्ट हो. आप जो भी बोल रहे हो, यू शुड बी एन एक्सपर्ट इन दैट. You should have full knowledge about it. Next is conceptual. आपको अपना जो concept है, you know, stay on the point, focus रखना है. आपने beating around the bush नहीं. You can always tell a story. उसको concept तैयार कर सकते हो and easily उसको बता सकते हो. It should be concrete, you know. It should be very concrete in sense that don't beat around the bush, give facts, specific examples. तो अपने life से भी अगर आप बोलते हो कि, you know, you have worked for an internship or you have an experience, so you should have examples. You should have examples. आपको अपने life से example देने हैं, experience customized होना चाहिए. अब जरूरी नहीं है बताने हैं कस्टमर की, यू नो, मैं एक ही चीज तैयार करूं हर तरह के ऑडियंस के लिए, राइट. सो आई बी प्रिपेयर्ड, व्हाट इज माय ऑडियंस, मैं किसको बता रहा हूँ. अगर आप किसी एक कंपनी को देते हो ना इंटरव्यू और इंट्रोडक्शन, उसको बताते हो, तो और दूसरी कंपनी बिल्कुल दूसरी इंडस्ट्री से है बट लुकिंग फॉर द सेम पर्सन, यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपका ऑडियंस क्या मांगता है आपसे, राइट. सो then you should be consistent with what you say, focus on the keynote, your audience should remember you, you know, उसको remember, memorable होना चाहिए. Next, conversational. It should be an engaging, interactive. For example, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि during the session, please, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो, you know, you can give me a चैट में आप बोल सकते हैं इंटरैक्टिव, क्योंकि मैंने आप लोगों को म्यूट इसलिए करके रखा है ड्यू टू देयर आर प्रॉब्लम्स व्हेन वी स्पीक एज अ स्पीकर. तो कईयों की अगर माइक ऑन रहते हैं तो वो क्लैरिटी नहीं बनती है, इसीलिए हम लोग माइक्स को म्यूट करके रखते हैं. बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज आस्क, एंड व्हेन आई आस्क यू अ क्वेश्चन यू शुड गिव इन रिप्लाई टू, राइट. नेक्स्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड. अब जो भी है, लेट्स गेट स्टार्टेड स्टेप बाय स्टेप. एंड जब मैं आपको ये चीज बता रही होंगी तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू राइट इट डाउन विद दिस, यू नो. जब मैं आपको अगर बता रही हूँ कि पहला स्टेप है कि डिस्क्राइब हु यू आर, तो यू शुड एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर अबाउट योर सेल्फ. डिस्क्राइब योर सेल्फ, यू नो. बाय द एंड ऑफ द टाइम आप मुझे चैट बॉक्स में अपना एलिवेटर स्पीच भेज सकते हैं ताकि हम शेयर कर सके एक दूसरे से, और उसमें अगर कुछ ठीक करना हो वो भी कर सकते हैं हम लोग, राइट. ओके, right. Okay, so first step, the first step says describe who you are. Very important, it should be very short. And remember, मैंने वहां पे hint भी लिखा है कि what would you most want the listener to remember about you. You know, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जब काफी सारे लोगों से मिलते हो, या स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं कि जब आपका कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं या इन्वेस्टर मीट होती है, तो दैट पर्सन इज मीटिंग मेनी पीपल, मेनी, मतलब स्टूडेंट्स के साथ वो मीट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स को मीट कर रहे हैं, तो उनको जरूरी नहीं है उनको सबके नाम याद रहेंगे. तो हम नॉर्मली क्या गलती करते हैं, हम हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में, अपने नाम के बारे, नाम बताते हैं, अपनी फैमिली बताते हैं, और इसी में ही हमारा आधा टाइम निकल जाता है. दैट्स नॉट द करेक्ट थिंग. तो इसमें क्या है, डिस्क्राइब हु यू आर में राइट डाउन
कि what would you most want the listener to remember about you. For example, let me tell you, I am Tanushree Chandra and I have been a career expert for last 8 to 10 years, राइट सो अगर मैं किसी ऐसे ऑडियंस के सामने बात कर रही हूँ जो करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस सर्च कर रहे हैं या जिनके पास क्वेरीज हैं, जो इंटरव्यूज में स्टक होते हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, वो मेरे साथ कनेक्ट जरूर होंगे कि ओके चलो लेट्स गिव हर अ है कि शी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज रिलेटेड टू अस, राइट. सो वी हैव टू सी इन दैट वे. नेक्स्ट इज सेकंड हमारा है कि डिस्क्राइब व्हाट यू वांट टू गिव, राइट. ओके, तो स्पेशलिटी क्या है आपकी, स्पेशलिटी क्या है, वैल्यू क्या ऐड करने वाले हो, राइट. व्हाई शुड दे केयर, व्हाई शुड लाइक व्हाट, डिस्क्राइब व्हाट यू डू, यू नो आपकी स्पेशलिटी क्या है. मेरी स्पेशलिटी है, आई एम अ सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर. जब आपकी कोई क्लास होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपके टीचर्स आते हैं क्लास में और वो बोलते हैं कि हाय हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल बी टेकिंग योर डिजिटल मार्केटिंग क्लास या आई विल बी टेकिंग योर इंग्लिश क्लास, तो आप कहोगे अच्छा ठीक है. बट अगर वो ये भी साथ में बोलता है कि यू नो आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम सच एंड सच इंस्टीट्यूशन या मेरा इसमें इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको और इंटरेस्ट बढ़ जाता है, आप उसको और सुनना चाहते हो. क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा इसमें यू नो वैल्यू है, कुछ वैल्यू ऐड करेगा ये हमें, राइट. सो इसी तरह से ऑलवेज रिमेंबर द सेम थिंग विथ यू ऑल्सो, राइट. स्टेप 3, अब आपने अगर स्टेप 1 और स्टेप 2 लिख लिया, यू नो द फर्स्ट स्टेप सेज कि डिस्क्राइब हु यू आर, फर्स्ट लाइन में कि आप कौन हो और आप क्या चाहते हो दूसरा आपके बारे में याद रखे. सेकेंड थिंग इज डिस्क्राइब व्हाट यू डू, यू नो बेस्ट आप में क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, राइट. आप वैल्यू कैसे ऐड करोगे. थर्ड इज डिफरेंशिएट योरसेल्फ. अब यू नो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यू नो दैट एवरीबडी यू नो इन द लाइन, सेम लाइन में कई सबके पास सेम क्वालिफिकेशन होगा, सबके पास सेम डिग्रीज होंगी, तो आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करोगे. यू नो मे बी एक तरह का प्रोडक्ट काफी सारे स्टार्टअप्स बना रहे होंगे, तो आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, यू नो. तो दैट आपको यूनिकनेस ढूंढनी होगी. लास्ट अभी पीछे हमारा लास्ट वीक एक सेमिनार वेबिनार हुआ था बाय हमारे जो सेंटर हेड है करनाल के सर ने हमें बताया था कि यू नो यू हैव टू ब्रिंग आउट द यूनिकनेस. हमें पता होना चाहिए हमारे में यूनिक क्या है, क्योंकि इट्स अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट. हम अकेले नहीं ला रहे हैं कोई प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पर हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेम वे कि हम में डिफरेंट क्या है, हमारे प्रोडक्ट में डिफरेंट क्या है, हाउ वी विल बी एडिंग अ यूनिक थिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट इज वी हैव टू फाइंड दैट थिंग कि मेरे में क्या ऐसा डिफरेंट है कि मुझे आप हायर करोगे, या मेरे प्रोडक्ट को आप क्यों पिच करोगे, या मेरे आइडिया को आप क्यों आइडिया में क्यों इन्वेस्ट करोगे, उसमें यूनिक क्या है. यू हैव टू थिंक. सो व्हाट मेक्स यू बेटर, व्हाई आर यू डिफरेंट, सेट योरसेल्फ अपार्ट, यू नो. तो जब आप ये चीज लिख रहे हो अभी राइट नाउ, तो डिफरेंशिएट योरसेल्फ, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो, क्योंकि इससे आइडिया पता चलता है कि आपने अपने कॉम्पिटिटर्स की भी यू नो अच्छे से खोजबीन कर ली है, आपने मार्केट को रिसर्च किया है कि ओके मार्केट में ये भी चल रहा है, मार्केट में वो भी चल रहा है, सेम प्रोडक्ट में ऐसे ही लोग भी हैं, इतना कंपटीशन है, यू नो. अगर मैं अकेली डिजिटल मार्केटिंग की स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लाइन में है जो सेम डिग्री सेम सर्टिफिकेशन के साथ यू नो इंटरव्यू देने वाले हैं, सेम कंपनी में बैठेंगे इंटरव्यू देने. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. सो यू हैव टू गिव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ योर्स इन द थर्ड लाइन. अब फोर्थ चीज क्या है, स्टेप 4 क्या बताता है कि डिस्क्राइब योर गोल. जब आप अपना एलिवेटर स्पीच देते हो, this the audience, the listener should understand what is your goal, what you have in focus, आपका फ्यूचर क्या है. it should be forward looking, not backward कि मैंने 5 सालों में ये अचीव किया. नो, उसको देखना है कि आपने आगे के 5 साल कैसे करने हैं, what you have in यू नो कमिंग ईयर्स. आपने आगे के 5 साल एज अ सेल्स पर्सन या एज अ मार्केटिंग पर्सन या एज अ डेवलपर अपने आपके 5 सालों को कैसे वो किया है,
स्टार्टअप क्या स्टडी किया कि आपके 5 साल, तो इसमें क्या है, इफ यू रिमेम्बर हमने पीछे एक वेबिनार लिया था हमारे गुरुग्राम के सेंटर हेड ने अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, जिसमें उन्होंने स्मार्ट गोल्स के बारे में बताया था। तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट थिंग कि अपने जो गोल्स हैं उनको स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, दे शुड बी मेजरेबल, मतलब आपके जो गोल्स हैं दे शुड बी वेरी स्पेसिफिक, दे शुड बी मेजर्ड, मतलब आप उनको डे टू डे टाइम के ड्यूरेशन में आप उसको मेजर कर सको कि ठीक है आज मैंने ये सोचा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई थिंक कि मैंने अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, तो मैं इसके लिए एवरी डे इतना टाइम रीडिंग में लगाऊंगी, बुक्स रीड करूंगी, राइट। सो फॉर दैट एम आई डूइंग इट, मैं उसको मेजर कैसे करूं कि मेरी वोकैबुलरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, right? Then is it should be achievable. Okay, I have a question. Ma'am, can you please share the PPT post the session? Yes, of course, I will be sharing the PPT. Don't worry about it. Please give your mail IDs in the chat box. Leave your mail IDs in the chat box. I will be definitely sharing with you my PPT. Okay, so back to our session. ओके, तो योर गोल शुड बी वेरी स्मार्ट, कि स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी आई मेक एनी गोल कि आई हैव टू बी लाइक दिस, आई हैव टू बी अंबानी और मुझे इसके जैसा बनना है, ऐसे नहीं। यू हैव टू बी, मतलब वो अचीवेबल होने चाहिए, दे शुड बी अचीवेबल, देन रियलिस्टिक होने चाहिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड हैज उतना ही टाइम, 24 hours a day, nobody has 1 minute extra 1 minute less, तो सबके पास सेम टाइम है। सो उस टाइम लिमिट के अंदर हमें ये सारी चीजें करनी है, एंड इवन दिस गोज फॉर आवर एलिवेटर स्पीच ऑल्सो, कि हमें इससे ज्यादा टाइम किसी को भी नहीं मिलेगा। अगर ये 20-30 सेकेंड्स हमने अपने लिसनर को, हमने अपने रिक्रूटर को इम्प्रेस कर दिया, हमने अपने इन्वेस्टर को इम्प्रेस कर दिया, सो उसके पास हमारे उसकी तरफ से क्वेश्चंस आएंगे, he will be interacting with you, वो conversation करेगा आपके साथ, उसके पास questions होंगे आपके बारे में पूछने के लिए, right? So we have to make it in that way, हमारा elevator speech उस हिसाब का होना चाहिए। Next, so I hope आपने इन 4 steps को jot down कर लिया, and you have started writing down your own elevator speech. At the end of the, जिस तरह से मेरे पास सबके mail IDs आने लगे हैं, please I want to see some of the elevator speeches from you guys also, right? Okay, somebody is saying please repeat the second step. Okay, second step is it is about describe what you do. आप में स्पेशल क्या है, आप क्या एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकते हो, आप करते क्या हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट इन computer application, and I have specifically good in PHP and web development. तो आपने उसको बता दिया कि आपको आता क्या है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में बोल सकते हो उसको, जो मैंने बोला कि यूनिक क्या है, मैं सिर्फ इसमें ही नहीं, वेब डेवलपमेंट में ही नहीं, मतलब मेरी क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी है, जिससे आई कैन प्रेजेंट दी, जो भी मैं वेबसाइट या उसमें जो भी प्रोजेक्ट्स हैंडल करता हूँ उसमें मैं अपनी क्रिएटिविटी भी देता हूँ, आई ब्रिंग न्यू फ्रेशनेस टू दैट। तो वो आपने अपनी यूनिकनेस प्रोवाइड कर दी। तो दिस इज स्टेप नंबर 3, एंड स्टेप नंबर 4 वुड बी कि व्हाट आई सी, मैं चाहता हूँ, मैं आगे अपने फ्यूचर को कैसे देखता हूँ, इन 2-3 years या कमिंग टाइम में मैं क्या देख रहा हूँ। इवन एज एन इंटरव्यूई आप बता सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन डेवलपमेंट पोजिशन, वेब डेवलपमेंट पोजिशन और अ प्रोजेक्ट टीम हेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पोजिशन इन दिस। तो इस तरह से, ठीक है। ओके, तो जब हमने ये, आई होप आप लोगों को ये चारों स्टेजेस समझ में आ गए, स्टेप्स समझ में आ गए, सही सिंपल। अगर आप बहुत सिंपली अपने डे टू डे लाइफ में से रोज थोड़ा थोड़ा इसमें से लिखोगे ना, आई नो आप लोग ये कर लोगे बहुत इजीली। और नहीं कर पाते हो तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू इन मेकिंग योर एलिवेटर स्पीच, डोंट वरी अबाउट इट। ओके,
तो मैं दोबारा से एक बार आपको बताती हूँ कि डूज एंड डोंट्स क्या है जब आप इस एलिवेटर स्पीच को बना रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर इट शुड बी एफर्टलेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने मगअप कर लिया, मतलब मेमोराइज कर लिया और मैंने दर 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 करके बोलना है। कई बार मैंने ऐसा देखा है, बिकॉज आई हैव बीन इनटू एचआर आल्सो, आई हैव बीन रिक्रूटिंग फॉर मेनी कंपनीज एज इन पास्ट माय कंपनी। तो उसमें क्या होता था कि जब द यंग स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम एंड वो ना एकदम, जब we ask, describe about yourself, tell me something about yourself. Hello, ma'am. I am so and so. I am from this college. I have a graduation in this field, and I have 4 siblings. I have this. इस तरह से वो ऐसे लगता था कि जैसे रोबोट की तरह बता रहा है. It should not be like that. It should be effortless. It should be very clear, very smooth. जैसे कि आप उससे बात कर रहे हो, आप अपनी एंटाइसिंग होना चाहिए, एंथुजियास्टिक होना चाहिए अपने बारे में जब आप बता रहे हो। तो इट शुड बी वेरी फ्लॉलेस, इट शुड बी कमिंग नेचुरली टू यू, राइट। कन्वर्सेशनल होना चाहिए कि आप उसको ऐसे हिंट्स दो जिससे वो खुद आपको क्वेश्चन करे। अच्छा, आपने अभी बताया था कि आपने एक प्रोजेक्ट हैंडल किया था। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट। तो इस तरह से क्या है कि आपका कॉन्वर्सेशन बिल्ड होएगा, आप कम्युनिकेट करने लगोगे, आप दोनों के बीच में, इंटरव्यू और इंटरव्यूअर के बीच में, या इन्वेस्टर, जैसे आपने बताया कि सर अभी तक मैंने इतने प्रोडक्ट्स बना लिए और मार्केट में जब लॉन्च किया तो ये चीजें, आई हैड दीज कस्टमर्स जिनके लिए मैं कस्टमाइज्ड गुड्स बनाता था। तो आगे से इन्वेस्टर पूछ सकता है, अच्छा किस तरह के गुड्स बनाते थे, क्या कस्टमर की डिमांड्स होती थी। तो और वो इंडल्ज करेगा, वो आपको और इन डीप खोदने की कोशिश करेगा, एंड दैट विल कम नेचुरली, राइट। सो इट शुड बी मेमोरेबल, वो आपको याद रखे, इस तरह का आपने बनाना है। लिसनर फ्रेंडली होना चाहिए, ऐसा नहीं, यू शुड ऑलवेज हैव अ क्यू कि बॉडी लैंग्वेज देखो, अपना बॉडी लैंग्वेज तो आपने देखना ही देखना है, साथ में सामने वाला का भी, लिसनर का भी। कि कई, जैसे अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप में से कितने लोग सो गए, बट जब आप लेफ्ट करते हो तो पता चलता है अच्छा कई लोग बोर होके निकल रहे हैं धीरे धीरे। so that's, you have to understand the body language, you have to understand, you have to have a good eye contact, it should be short and crisp, well practiced. Practice makes a मैन और अ वुमन परफेक्ट। तो ये तो है ही है कि प्रैक्टिस तो आपने करना ही करना है, जो भी हो जाए, क्योंकि इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। कोई भी आपको पूछे, हेलो, फॉर इंस्टेंस आप किसी नए बंदे से, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग अभी मेंटरिंग कोई सेशन कर रहे हैं और आपको कोई क्वेश्चन आता है और मैं बोलती हूँ कि ठीक है आप अपना माइक ऑन करिए और बात कीजिए। तो जब आप उस स्पीकर से बात करोगे तो आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दोगे। And always remember, this is a very good time to network, to talk to people, to let them know कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि after few months you will be keeping your foot in the real world. So you should take the opportunity, you should take this opportunity very properly and very nicely. That is why elevator speech plays a very very important role in your life right now, right? डोंट्स में क्या है कि फोकस ऑन योर सेल्फ, हमेशा सिर्फ पूरे पिच में आपके ऊपर ही फोकस नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा हूं, मैं ये करता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर कि वो आपको क्यों हायर करे, इस क्वेश्चन का भी आपने आंसर देना है उसके परस्पेक्टिव से। वो आप पे पैसे क्यों लगाए, आपके नए स्टार्टअप पे वो आपके ऊपर मनी क्यों लगाए, ये भी उसको उसको भी फोकस करना है आपने। यूज ऑफ इंडस्ट्री जार्गन्स, डोंट यूज मच ऑफ इंडस्ट्री जार्गन्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेडिकल फील्ड से हो तो डोंट यूज मच ऑफ मेडिकल टर्म्स, ठीक है, जो कई बार कई लोगों को समझ में ना आए। तो इससे क्या है कि क्लैरिटी नहीं बनती है। फॉरगेट टू चेंज द स्पीच फॉर डिफरेंट सिचुएशन। मैंने अभी आपको बताया था कि कस्टमाइज्ड होना चाहिए, वो रिमेंबर दो C9s, 9 Cs, राइट। सो रैम्बल नहीं करना है, मम्बल नहीं करना है कि भूल गया मैं अब क्या बोलूं, ओ शिट मैं तो भूल गया, नहीं। इट शुड बी फ्लॉलेस, एफर्टलेस होना चाहिए, अपने आप आएगा, व्हेन यू आर स्पीकिंग, एंड दैट शुड बी इन योर बॉडी लैंग्वेज। अगर अब आप ये सारी चीजें समझ गए हो तो लेट्स मूव टू एन एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैंने दो उसमें डिवाइड किया हुआ है। एक जॉब सीकर के हिसाब से आपका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए शॉर्ट एलिवेटर पिच का, एंड हाउ इट शुड बी लाइक अ स्टार्टअप के लिए कैसा एग्जाम्पल होना चाहिए, राइट।
So first, as a job seeker, hi, hello sir, I am a computer science student, a developer, specializes in PHP and web development. I'm currently interning with AppWorks, part of a team which is working on developing a new virtual platform for startups to market their product. I am interested in acquiring a project developer role with similar backgrounds and hoping to learn about the work environments in different companies. राइट सो ये देखिए कितना छोटा है, क्रिस्प है, इसमें आपने वो चारों स्टेप्स यूज कर लिए जिसमें आपने अबाउट योरसेल्फ बताया कि मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ फ्रेश, मेरी स्पेशलाइजेशन पीएचपी और वेब डेवलपमेंट में है, मैं अभी फिलहाल के लिए इंटर्न कर रहा हूँ किसी कंपनी के साथ, उनके एक प्रोजेक्ट में उनका काम कर रहा हूँ जिसके बारे में आपने थोड़ा सा बता दिया, और फ्यूचर में आपका गोल क्या है कि आप अपने आप को एज अ प्रोजेक्ट डेवलपर रोल में देखते हो अलग अलग कंपनीज में, ठीक है, और आप कोशिश कर रहे हो उसमें आने के लिए। सो आपने अपना सारा बता दिया इतने से कम टाइम के अंदर, सिर्फ 2-3 लाइंस के अंदर, ये 2-3 लाइंस में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट जाते हैं हम स्टार्टअप्स का। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है छोटा सा। ओके, माय कंपनी My company eCreations is developing create illustrations for websites and branding to help local play schools to capture their market in the city. By developing customized logo and creating digital presence of my clients, we compete in the growing digital market with similar products, but with our cost-effective and innovative creative methods, we make our customer more happy. We are looking forward for lakhs rupees, 5 lakhs rupees investment for purchasing advanced tools that would lead to reducing time and working for more clients. ये है एक, अगर कोई स्टार्टअप अपना पिच तैयार करना चाहता है फॉर गेटिंग मनी फ्रॉम समबडी और क्लाइंट बेस बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, जिसमें उसने अपने बारे में बताया, उसकी कंपनी क्या करती है, उसका स्टार्टअप क्या करता है, उसका क्लाइंट बेस क्या है, उसका कंपटीशन किसके साथ है, पर वो अलग कैसे है अपने कंपटीशन के अंदर बाय बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव एंड इनोवेटिव इन क्रिएटिव मेथड्स, एंड वो फ्यूचर के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, व्हाट इज हिज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। तो इतने से छोटे से उसमें उसने सारा कुछ बता दिया, राइट। नेक्स्ट, ओके, so in the next slide I have given you a template where it's a startup elevators template. आप इसको copy कर सकते हो, या जब I mail you back your this PPT, आप इसमें से इसको उठा के अपने startup के लिए जब elevators pitch बना रहे हो तो आप इसको ले सकते हो, जहाँ पे आप अपना कंपनी का नाम दोगे, ठीक है, आप क्या डेवलप कर रहे हो, आप क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो वो लिखोगे, टू हेल्प, आपका ऑडियंस बेस क्या है, आपका कस्टमर बेस क्या है, क्या प्रॉब्लम आप कस्टमर की सॉल्व कर रहे हो, अपने क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और वो डिफरेंशिएशनल जो एलिमेंट है वो क्या है, जिसका नाम मैंने सीक्रेट सॉस बोला है, कि वो आपका डिफरेंशिएशनल एलिमेंट क्या है, क्या आप डिफरेंट कैसे हो, राइट। नेक्स्ट वाला जो टेम्पलेट है दैट इज फॉर अ जॉब सीकर, जॉब सीकर के लिए है, which says a quick introduction, जिसमें आप नेम, कॉलेज यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम, कॉलेज का नाम जहां से आपने ग्रेजुएट किया और कौन सी डिग्री में ग्रेजुएट किया, वो लिखोगे आप फर्स्ट लाइन में, ठीक है। सेकंड में होना चाहिए व्हाट आर यू सीकिंग, आपके करियर गोल्स क्या है, आप किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, बीइंग फ्रेशर्स कहीं बोलेंगे कि मैम हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन राइट डाउन योर इंटर्नशिप्स, यू कैन राइट डाउन आपने समर्स में, वेकेशंस में, विंटर वेकेशंस में कोई भी इंटर्नशिप की, कोई भी ट्रेनिंग करी, कोई भी कोर्स किया, उसके बारे में आप लिख सकते हो, राइट, कि आई हैव बीन ट्रेनिंग माई सेल्फ इन PHP development, I have been training myself in being a reporter। अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, अगर कोई मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है, तो वो ये लिख सकता है कि आई एम इंटर्निंग विद इंटर्निंग विद माय कॉलेज रेडियो स्टेशन और कॉलेज न्यूज़पेपर, ठीक है। इस तरह से आप अपने साइट एग्जाम्पल साइट कर सकते हो। व्हाट कैन यू ऑफर, आपका स्किल क्या है, हाउ यू वुड बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि आपके जो स्किल्स हैं वो किस तरह से कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा, राइट? ओके, so it's your, now I leave to you the questions. I leave question hai, you can ask, you can give me, write down in the chat box, right? What are your questions? You can ask. तब तक I can, or anybody wants me to repeat any slide, क्योंकि see it's your introductory speech, you only have one chance to make the first impression, क्योंकि आपको पता है कि हम ये phrase हमेशा बोलते हैं कि first impression is the last one. So you know, आपको जो ये impression बनाना है वो आपको खुद में बनाना है, और किस तरह से बनाओगे ये आपके ऊपर depend करता है. तो don't waste that, you know, don't waste that time, don't waste that opportunity. Go for it with your keeping your best foot forward, right? And that is why we are here to guide you, help you throughout your journey as a job seeker, as a startup. You have to have, uh, all things ready before you go for the d-day. Okay, so we have somebody on chat box who is giving a very good, I have a pitch here. Okay, I am Gaurav Dabba. I am a commerce student. I love teaching. I have given coaching to my colleague or my juniors. I'm leading my team in a motivating way. Now I am leading my NSS volunteers. I'm also certified as a, I'm also certified as a best NSS volunteer in. I want to be a professor and social worker. I want to see myself in a successful profession as a professor and serve something for my nation as a volunteer. Very good. See, Gaurav, I would like to tell you one thing, that यहाँ पे 2-3 lines बार-बार repeat हो रही थी, तो उनको कोशिश करो कि repeat ना करो, क्योंकि फिर वो repetitive हो जाता है. जैसे आपने एक चीज mention की NSS volunteers, वो आपने 2 बार mention कर दी है, तो उसको एक ही line में convert कर लो. Second है, जैसे आप convert कर सकते हो कि I am a leading NSS volunteer where and a certified and leading NSS volunteer, right? ये एक ही लाइन में आ गया, ठीक है. दूसरा, आपने लिखा कि I have passion about I have passion about teaching and coaching my colleagues. ये ऊपर भी दिया है और नीचे भी आ गया, तो इसको एक ही लाइन में देने की कोशिश करो कि I am passionate about teaching and making students aware, and it is my not only I don't want it as a profession and also giving back to the society. तो ये जो लास्ट का लाइन है और प्रोफेशन एक साथ आ जाएगा, तो ये बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प हो जाएगा. ओके गौरव? ओके. What is strong and weak point? Very important thing. What is strong? आपकी strengths क्या है, आपकी weaknesses क्या है? आपको अपनी skill inventory बनानी चाहिए, आपको अपना SWOT analysis करना चाहिए खुद के ऊपर कि जो मेरा what are my strengths, what are my weaknesses, मैं opportunities मुझे क्या क्या मिल रही हैं, मेरी threats क्या है, मेरे competitors कौन है, कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं इस टाइम पे. We should always do that. That self analysis is very important as a student, as a young student, as a entrepreneur, for everybody it's very important. तो बार बार अपने जो strong points है और weak points को देखा करो. Strong points वो होते हैं जो आपकी strengths होती हैं, कि आप में अच्छा क्या है, what do you do the best, and the weak points are कि जो आपकी weakness है. अब देखो, it's not good to tell weakness to other person, like to the, especially to the interviewer or to the investor, कि आप में weak क्या है, आपकी गलती क्या है. कभी भी सामने से मत बताओ, right? It's not a good thing, but आपको पता होना चाहिए कि आपकी weakness क्या है और उसको आप कैसे cover कर सकते हो या उसको improve कैसे कर सकते हो. Okay, so am I clear, Rohit? Is it okay, or you want me to elaborate it more? Okay. Next is Ankush. I am Ankush, well-educated person of India. I have done my internship under AppWorks company. Okay, ये इतना सा है आपका. इसमें आपने अंकुश ये नहीं बताया कि आप करना क्या चाहते हो. आपने ये तो बता दिया, तो मेरे पास नेक्स्ट होगा कि ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट, राइट? तो ये क्वेश्चन हमारे जो आपकी ये इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो
Okay, okay, you are completing it. Very good. आप complete करो, we can try. Tips for networking. Okay, प्रवीण देखिए, networking is the key to success. You know, आपको मैंने अब तक जो अपने लाइफ में जो चीजें सीखी हैं, they are all from networking. You know, when you network, when you communicate with different people, you know get to learn lot of things, you get to understand lot of things. क्योंकि सब कुछ हमें कॉलेज में या पढ़ के नहीं मिल सकता, हमें लोगों के अनुभवों से भी सीखना पड़ता है, हमें उनके एक्सपीरियंसेस से भी सीखना पड़ता है. सो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि नेटवर्क बढ़ाओ. नेटवर्क इन द सेंस के जैसे आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है थ्रू यू नो अस to get to know different mentors, to get to know different people from different big companies who are coming to for your sessions. Webinars होते हैं, mentoring sessions होते हैं, उसमें जैसे जब लोग आते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करो, उनसे बात करो, की कोशिश करो, मिलने की करो. हम लोग भूल जाते हैं, अरे वो सर आए थे, क्लास लगा भूल गए. डोंट डू दैट. उनके साथ कांटेक्ट रखो, क्योंकि यही कांटेक्ट आपको हेल्प करेगा. फॉर एग्जांपल, अब लास्ट वीक हमारी एक डिजिटल मार्केट लिंक्डइन है, एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं. लोगों
You can give me offline questions. You can ask questions. Always ask. You can always ask me questions. If you want to ask now, you can ask me questions by raising hands. Okay, there is no question. So I would like to thank you all for listening and being patient and learning. I would like to आप लोगों ने भी मुझे मेल आईडीज भेजी हैं. I will be definitely mailing you all the PPTs, the PPT on elevators page. And फिर भी आपको अगर कोई question होता है, do ask me, do get back to me for any queries. Right? अगर कोई भी आपको query होती है, do ask me, do come back to me. I can always answer. Hello. कोई participants नहीं आ रहा है. Okay, so I will be I will be ending the session now. Thank you so much. Thank you, everybody. And I will be looking forward for your questions, your queries. Please contact me through the center number, right? Thank you all. You can what's your question? Thank you, everyone. Problem on the internet. The net is okay, then everything is working fine. What has happened?